السلام علیکم۔ میرے ابو کی کافی زمینیں تھی جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا انتظام بہت اچھا چل رہا تھا۔ زمینوں سے ہمیں خوب ساری آمدنی ہو جاتی تھی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ہماری زندگیوں میں ہلچل مچ گئی۔ ابو کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت میں سب سے بڑی تھی، میری عمر 13 سال تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ چھوٹی بہن 7ویں میں اور سب سے چھوٹا بھائی صرف 7 سال کا تھا۔ ہم سب کا اس حادثے کی وجہ سے برا حال تھا، خاص طور پر ہماری ماں کا۔ ہم تو پھر بھی مطمئن تھے کہ ہمارے سروں پر ماں کا تو سایہ ہے۔ اس موقع پر چچا نے ہمارا ساتھ دیا، جو کچھ زمینوں سے آتا وہ ایمانداری سے ہمیں پہنچا دیتے اور ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ امی خاموش طبع اور صابر خاتون تھی۔ سسرال والے خوش تھے کہ بچوں کی خاطر جوانی میں بیوگی کو قبول کیا اور مرحوم شوہر کا گھر نہیں چھوڑا۔ امی کا ایک وقار تھا، ساکھ تھی، جب سسرال کی کسی گھر جاتی، عورتیں تو عورتیں، تعظیم کی خاطر مرد بھی اٹھ کر ملتے تھے۔ معلوم نہیں پھر امی کو کیا ہوا کہ وہ ہم سے کچھ کھینچی رہنے لگی۔ ان دنوں میں 10ویں میں پڑھتی تھی کہ ہم پر یہ انکشاف ہوا، ہماری امی نے فیروز نامی ایک شخص سے شادی کر لی ہے۔ شروع میں تو ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ معلوم نہیں اس آدمی نے کیسے امی کو اپنی جال میں پھنسا لیا تھا۔ بقول امی، انہوں نے ہماری بہتری کے لیے اس شخص سے شادی کی تھی۔ سب لوگوں نے امی کو بہت لعن طعن کی۔ ابو کے تمام رشتہ داروں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ ننیال والوں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ غرض کہ اب ہم سراسر اسی شخص کے رحم و کرم پر تھے جس کو ابو کہنے سے ہمیں نفرت آتی تھی۔ میں بڑی تھی، مجھے امی کی غلطی کا سب سے زیادہ دکھ تھا، لہٰذا میں اپنے سوتیلے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی۔ وہ اگر صحیح بات بھی کرتے تو میں زبان درازی شروع کر دیتی۔ ان حالات کا میرے دماغ پر کچھ الٹا اثر ہو گیا تھا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ پھوپھی کو جب میری حالت کا پتہ چلا، وہ مجبور ہو کے مجھے دیکھنے آئی۔ جب مجھے ڈاکٹر کو دکھایا، وہ کہتے اس کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ حکیم کہتے مرگی ہے۔ دن بہ دن میری حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ تو ایسی حالت ہو گئی کہ امی نے مجھ پر سفید چادر ڈال دی اور چارپائی پر لٹا کر میری آخری سانس نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ انہی دنوں پھوپھو مجھے دیکھنے آ گئی اور اسی بری حالت میں اپنے گھر لے گئی۔ خدا کی کرنی کہ میں پھوپھو کے ہاں جاتے ہی بغیر علاج ٹھیک ہو گئی۔ اپنے پاؤں پر چل کر گھر آئی، لیکن گھر آتے ہی میری حالت پھر غیر ہو گئی اور مجھے دوبارہ دورے پڑنے لگے۔ اس بات کی اطلاع جب میرے ماموں کو ہوئی تو وہ آ کر مجھے لے گئے۔ میرے بعد میرے بھائی کی باری تھی، کیونکہ آتی دفعہ میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے آئی تھی، لیکن بھائی کو میری اماں نے ساتھ نہ آنے دیا کیونکہ بھائی سے ماں بہت پیار کرتی تھی۔ میرا بھائی سوتیلے باپ کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اس کے ساتھ سوتیلے باپ نے کچھ ایسا سلوک کیا کہ اس معصوم نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب ماں کو احساس ہوا کہ اس نے دوسری شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جس اولاد کی خاطر اس نے دوسرا خاوند کیا، اولاد نے اس کو قبول نہ کیا۔ پھر نہ وہ اولاد ہی ساتھ رہی جس کی بہتری کے لیے میری ماں نے یہ توق گلے میں ڈالا تھا، اور نہ اسے نئے خاوند کا پیار ملا۔ فیروز کا یہ اصرار تھا کہ زمین اور مکان میرے نام لکھ دو۔ مکان کے علاوہ آدھی سے زیادہ زمین والد صاحب ماں کے نام کر گئے تھے۔ ماں جائیداد اس شخص کے نام نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی بدسلوکی کو سلوک میں بدلنے کے لیے انہوں نے اپنی جائیداد اس آدمی کے نام کر دی۔ یہ وجہ بھی کارگر نہ ہوئی اور ماں بالکل بے یار و مددگار ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ آدمی چاہے ساری جائیداد لے لے لیکن طلاق دے دے، مگر اس شخص نے یہ بھی منظور نہ کیا۔ چھوٹی بہن کی شادی میں نے خالہ کی منت سماجت کر کے ان کے بیٹے کے ساتھ کرا دی اور خود ایف.اے. کر کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ انہی دنوں خالہ فوت ہو گئی تو اس کے بعد مجھے کوئی بھی رشتہ دار اپنے ہاں رکھنے پر تیار نہ ہوا، یہاں تک کہ بہن بھی اپنے گھر رکھنے پر راضی نہ تھی۔ ننیال میں کوئی اپنانے کو تیار نہ تھا۔
कहते थे कि एक ले ली है वही काफी है। मैं मजबूर होकर अपनी हेड मिस्ट्रेस के तवस्त से एक गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। बास लोग किस कदर खुश नसीब होते हैं कि बिन मांगे सब कुछ पा लेते हैं, और बास को सिवाय महरूमियों के कुछ हाथ नहीं आता। हालांकि जीवन भर वो दुखों की खारदार राहों पर चलते रहते हैं, सदा मंजिल के मतलाशी रहते हैं। इस तलाश में उनके पांव क्या रूह तक जख्मी हो जाती है। मैं भी उन्हीं लोगों में थी कि जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। दुनिया में मेरी किसी को परवाह ना थी। एक फूफी थी जो सारे खानदान से छुपकर मुझे कभी कभी हॉस्टल में मिलने आ जाती थी। एक दिन फूफो आई तो उनका चेहरा बड़ा ही पुरउम्मीद था। आते ही बोली, बेटा आज तुम 2 दिन के लिए मेरे घर चलो, क्योंकि मेरी एक सहेली है, साइम की वालदा तुम्हारे रिश्ते के लिए आने वाली है। फूफो, आपको तो पता है कि मैंने सारी उम्र शादी ना करने का फैसला किया है। मुझे नफरत है मर्दों से, शदीद नफरत। देखा नहीं माँ ने हमारे लिए क्या साइबान ढूंढा। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, कैसे तरह गुजारोगी। मर्द तो मुहाफिज होता है औरत का, एक साइबान होता है। अगर ये साइबान सर पर ना हो तो औरत जमाने की तेज धूप में झुलस कर रह जाती है। जैसा साइबान माँ ने ढूंढा ऐसा साइबान हमको कबूल नहीं। मैं भी वैसे गुजार दूंगी फूफो जैसे आप गुजार रही हो, और मुझे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं है। अम्मी ने भी तो की थी शादी, अब नया मुहाफिज कहाँ है। वो साइबान जिसने हमारे सर से तुम्हारे बाप के घर की छत भी छीन ली है। मैं शिद्दत जज्बात से रो पड़ी थी और मैंने फूफो से कहा कि आपका भी तो बनाया गया था एक मुहाफिज। मैंने फूफो जान को याद दिलाया, फिर पूछा कहाँ है वो मुहाफिज, वो साइबान। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है फूफो, जब फूफा ने महज इतनी सी बात पर आपको तलाक दे दी थी कि वो आपको मजीद रकम घरेलू अखराजात के लिए नहीं दे सकते थे। ऐसे मुहाफिजों का क्या फायदा जिनको अपनी मासूम बच्चियों और बावफा बीवियों से कोई सरोकार नहीं होता, जिनको अपनी अयाशियां और पैसा औलाद से ज्यादा अजीज होता है। फूफो को भी फूफा ने 10 साल रफाकत और मोहब्बत का सिला तलाक की सूरत में दे दिया था, और अपनी कम सिन जवां साल सेक्रेटरी से ब्याह करने की खातिर बहाने से तलाक दे दी थी। उन्होंने तलाक देते वक्त ये भी ना सोचा कि मेरी 2 मासूम बच्चियों का कौन मुहाफिज होगा, कौन उनके सर पर दस्ते शफकत रखेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा। उन्होंने इन सबको अपनी जिंदगी से इस तरह निकाल फेंका था जैसे उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बाद मेरी फुप्पो और उनकी बच्चियां भी चचा के घर पनाह लेने पर मजबूर हो गई, और आज तक यही उनकी जिम्मेदारी उठाए हुए थे। जिन दिनों फुप्पो मुझे अपने साथ ले गई, मेरी फूफी जात बहन अकीला बहुत दुखी लगती थी। मुझसे कहने लगी, आरफा अगर कभी मुझे अब्बा जान जिंदगी के किसी मोड़ पर मिल जाएं तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगी कि नाराजगी और इख्तलाफ अगर था तो अम्मी से था, लेकिन हमारा क्या कसूर था, क्या बिगाड़ा था हमने आपका, जिसकी आपने ये सजा दी कि मेरे सर से साइबान ही छीन लिया। दरअसल वो मुझे ये समझा रही थी कि तुम तो सुतेले बाप की सतम जरीफी पर रो रही हो, हमें देखो हम सगे बाप की संग दिली का निशाना बन गए हैं। तभी मुझे और भी ज्यादा मर्द हजरात से नफरत महसूस हुई। तब मैंने फैसला किया कि फूफी जान मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। सब मर्द एक जैसे नहीं होते बेटी, साइम बहुत अच्छा लड़का है, तुम मान जाओ। मेरी बच्चियां अपने मामू के साय में हैं, उनके रिश्ते कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे, लेकिन तुम तन्हा रहती हो और तुम्हारा रिश्ता होना बेहद मुश्किल है। वो देर तक मुझे समझाती रही कि तुमने मर्द का सिर्फ एक रुख देखा है, मान जाओ मेरी बच्ची। फूफो ने मिन्नत समाजत की तो उनकी खुशी की खातिर मैं मजबूर होकर उनके साथ चचा के घर आ गई। अगले दिन साइम की अम्मी आए, मुझे देखा और पसंद कर लिया। फिर शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। वो अपने वालदैन का इकलौता बेटा था। वो दिन भी आ गया जब चचा और फूफो के समझाने पर मैं दुल्हन बनी और रुखसत होकर साइम के घर आ गई। आज अम्मी बेतहाशा याद आ रही थी और आंसू मेरी आंखों से मुसलसल गिर रहे थे। काश इस वक्त वो मुझे दुल्हन बना हुआ देखती, अपने हाथों से रुखसत करती, लेकिन मैं तो थी ही बदनसीब कि ऐसे अहम मौके पर ना बाप का हाथ सर पर था, ना माँ की दुआएं ले सकी थी। शादी के बाद चंद हफ्ते तो सैर तफरी में गुजर गए।
पहली बार खुशी और सुकून की एक झलक देखी थी। साइम वाकई बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था। सास, नंदे, ससुर सभी हुस्न सलूक से पेश आ रहे थे। इतनी खुशी मिल जाने के बावजूद माजी की उदासी अब भी किसी किसी वक्त मुझ पर अचानक ही यलगार कर देती थी। तब मैं दुखी हो जाती और उन लम्हात को भुलाने के लिए ऐसे गाने सुनती, और यही एक बात मेरे शौहर को नागवार गुजरती थी। वो कहते थे कि आरफा, आखिर तुम ये गमगीन गाने क्यों सुनती हो? जब खुशियों से भरी जिंदगी मिल गई है और मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर जिंदगी से भरपूर खुशियों भरे गीत सुनो। जब भी वो मुझसे ये शिकवा करते, मैं यही जवाब देती कि मुझे ये अलमिया गाने अच्छे लगते हैं, इनसे मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो वो चुप हो जाते थे। उस मनहूस दिन भी साइम दफ्तर से वापस आए तो बहुत उलझे हुए थे। ऑफिस में काम बहुत था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं काम वगैरह से फारिग होने के बाद अपनी पसंद के गीत सुन रही थी। जब वो आए, मैं आंखें मूंदे लेटी थी और ऐसी गुम थी कि मुझे उनके आने का जरा भी एहसास ना हुआ। गाने के बोल मेरे कानों में रस घोल रहे थे। क्या बकवास है ये? साइम ने झंझलाकर कैसेट निकाल दिया। 1000 बार कहा है कि मत सुना करो ऐसे गाने, मगर तुम्हें कब मेरी बातों की परवाह है? ना जाने कौन सा दुख है तुम्हें, कौन जुदा हो गया है तुमसे, जिसकी यादों में इस कदर दर्द भरे गाने सुनती रहती हो। मैं उनके अनजाने खदशों पर हैरान थी। ये क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं जब मैं अपनी पसंद के गाने सुनती हूँ? हालांकि मेरा माजी तो बेदाग आईने की मानिंद शफाफ था और उस पर कभी किसी मर्द का नाम तो क्या शबियत तक न पड़ी थी। और वो थे कि आज आपे से बाहर होकर चिल्ला रहे थे। आज उस मर्द का बातिन भी जाहिर हो गया था, जिसको मैं अपना प्यारा दोस्त, जीवन साथी और अच्छा इंसान समझती थी। साइम कह रहा था कि आरफा, तुम्हें खुद को मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बदलना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो चली जाओ मेरे घर से। मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे अलावा किसी के बारे में सोचो, किसी बिछड़े हुए की याद में दिन रात मुझसे छुप छुप कर और अपने माजी को याद करने के लिए हर वक्त अलमिया गाने सुनती रहो। वो ये कहकर चला गया और मैं सुन बैठी रह गई कि ये उसको क्या हो गया है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरा खामिन, मेरा मुहाफिज मुझ पर इस कदर घटिया इल्जामात भी लगा सकता है। मैंने, खुदा गवाह है, अपने खाविन को दिल की गहराइयों से चाहा था, उसी की पूजा करती थी। मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ साइम की तस्वीर आवेजा थी, क्योंकि अब वही मेरा सब कुछ था। अपने हकीकी वालिद के बाद मैंने सिर्फ साइम ही का प्यार देखा था, उसी पर एतबार किया था। मुझे मर्द जात से जो नफरत थी वो साइम से शादी के बाद खत्म हो चुकी थी। उसका अलमिया गाने सुनने से कोई ताल्लुक ना था, ये तो मेरा मिजाज बन चुका था। मैं ये भूल ही गई थी कि साइम भी एक मर्द है कि वो औरत पर जब चाहे जैसा इल्जाम लगा दे, कोई उसे पूछने वाला नहीं। काश साइम तुम ये सब कुछ ना कहते, मैं तो पहले ही दर्दों जली थी। तुमने तो ये तक ना पूछा कि आरफा, आखिर तुम्हें दुख क्या है जो तुम ये गाने सुनती हो। मेरा तो ऐसा मिजाज बन गया था। वालिद साहब के कार के हादसे में फौत हो जाने के बाद से हालात की तलखी के सबब मैं ये गाने किसी बिछड़े हुए महबूब के इश्क में नहीं सुनती थी, मगर हाँ, अपने अफसुर्दा दिल को बहलाने के लिए अलमिया गीत सुनती थी। मगर मुझसे पूछने की जरूरत भी क्या थी? मेरे दुखों से आखिर तुम्हारा क्या वास्ता था? और फिर किस कदर आसानी से तुमने कह दिया कि चली जाओ, मेरा जाना ही बेहतर है। मैंने कहा था तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। तुमने ना ही मुझे रोका और ना ही बैग रखवाया। एतमाद की बुनियाद पर ही मियाँ बीवी का रिश्ता इस्तवार होता है। किसी गैर का तसव्वुर भी इस एतमाद की बुनियाद में दरारें डाल देता है। तब मुकद्दस बंधन की ये अमारत पल भर में जमीन बोस हो जाती है। उसी शाम में अपने चंद जोड़े लेकर अपनी सहेली के घर चली गई और फिर वहां से हॉस्टल। मैं साइम को ये बावर ही न करवा सकी कि अपने बचपन की बातें, अपने मरहूम बाप की शफकत से महरूमी का एहसास माजी में मुझ पर इस कदर गहरा था कि मैं दुनिया की तमाम दिलचस्पियों से कट कर रह गई थी। इस वजह से मैं अलमिया गाने सुना करती हूँ। हॉस्टल में आकर मैं कितने ही दिन साइम की मुंतजिर रही कि एक दिन उसको जब अपनी गलती का एहसास होगा तो वो मुझे लेने जरूर आएगा, मगर वो ना आया। कुछ अरसा खामोश रही, फिर तलाक आ गई और मैं अपने तसव्वुरात दिल में दफन करके हमेशा के लिए हॉस्टल की हो गई
और अपनी महरूमियों से समझौता कर लिया। जो थोड़ी सी रकम जमीन फरोख्त करने के बाद विरासत में मिली, उसको चचा ने हम दोनों बहनों में बराबर तकसीम कर दिया और मैंने उस रकम से एक छोटा सा घर खरीद लिया था कि सर पर साइबान ना सही, बाग के विरसे से खरीदे मकान की छत तो हो जो मुझे मौसमों के सर्दो गर्म से बचा सके। 5 वर्ष में तन्हा जिंदगी के सर्दो गर्म सहती रही। स्कूल में दोबारा मुलाजमत मिल जाने से मुझे सुकून नसीब हुआ। सोच भी ना सकती थी कि जिंदगी में एक बार फिर कोई खामोश तूफान आएगा। मार्च में मेरी शागिर्द लड़कियों के इम्तिहान थे। जब मेरी मुलाकात उसके फूफी जात नाइला के तवस्त से हुई, उन्होंने मेहमान का नाम वहीद और उनकी बेटी का नाम शीजा बताया। मुझे शीजा को ट्यूशन पढ़ाने को कहा गया था। मैंने मुआवजत चाही कि वक्त कम था और इम्तिहान सर पर थे, मगर बाजी नाइला के इसरार पर हामी भर ली। शीजा रोज अपने वालिद वहीद साहब के हमरा पढ़ने को आने लगी। 2-4 दिनों में अंदाजा हो गया कि वहीद अच्छे इंसान हैं। ना चाहते हुए भी मैं उनको ड्राइंग रूम में बिठा लेती थी। वो इंतजार करते रहते और जब शीजा 1.5 घंटे बाद पढ़ाई से फारिग होती और उसको साथ लेकर चले जाते। एक दिन उन्होंने वक्त मांगा कि मुझसे चंद बातें करना चाहते हैं। मैंने मुआजरत की क्योंकि अक्सर वक्त मेरी स्टूडेंट मुझसे पढ़ाई में मदद लेने घर आई रहती थी। उन्होंने इस्तदा की मेरी दावत कबूल कर लें और मेरे घर पर तशरीफ लाएं ताकि आपसे चंद जरूरी बातें जो कहना चाहता हूँ कह सकूं। मैंने सोचा कि शायद बच्चे के बारे में कुछ मसाइल होंगे, उनसे उनके घर पर जाकर बात करने का वक्त दे दिया। मैं उनके घर गई। एक मुलाजमा और 2 मुलाजिम उनके साथ घर में रहते थे। बेगम वफात पा चुकी थी। बच्ची उन्हीं मुलाजमीन की मदद से परवान चढ़ रही थी। भरा हुआ घर भी खाली खाली लगा क्योंकि घर में वो औरत मौजूद न थी जिसके दम से घर आबाद होता है। उन्होंने मुझसे अपनी उजड़ी जिंदगी में बहार लाने की भीख तलब की क्योंकि वो भी तन्हा थे और मैं भी। वो मेरे घर का माहौल देख चुके थे और उनकी बेटी को बकौल उनको मुझ जैसी माँ की जरूरत थी। मैं जो शादी के नाम से कानों को हाथ लगाती थी, उनकी पेशकश को ठुकरा दिया ये कहकर कि मर्द जात से मेरा एतबार उठ गया है। उनकी ऑफर कबूल करने से मुआवजत कर ली और माथे पर बल डालकर घर आ गई। उसके बाद वो मेरे घर नहीं आए, लेकिन एक खलिश से दिल में छोड़ गए। आज जबकि शादी की उम्र नहीं रही, जाने किस बात का तासुफ है जो कसक बनकर दिल को दबोच लेता है। शायद आने वाले बुढ़ापे में मजीद तन्हाई का खौफ या औलाद से महरूमी का एहसास, या फिर नहीं जानती इस जज्बे को किस शय का नाम दूं। लेकिन कभी कभी लगता है कि एक बार बहार ने दस्तक दी मगर मैंने उसको अपनी बेवकूफी की वजह से खो दिया। क्या खबर अगर मैं वहीद पर एतबार करके घर बसा लेती और शीजा को ममता का प्यार देती तो खुदा मुझे माँ के दर्जे पर फाइज कर देता। ये खलिश आज भी है।